इस वीडियो में हम जेईई मेंस 2022 टू 24 डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि लेट y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन secant x dy secant x dy plus 2 times 1 minus x tan x plus x times 2 minus x dx equal to 0. Okay, and given that y0 is equal to 2 and y2 we have to find. So dy we are getting dy is equal to minus of 2 times 1 minus x tan x and x 2 minus x dx divide with secant x. Okay, so dy is equal to minus 2 times 1 minus x tan x divided with secant x, we will get sin x plus x 2 minus x and cos x dx we have. Okay, so dy is equal to minus of 2 1 minus x sin x. Okay, and minus of x 2 minus x cos x dx. dy is equal to, we have 2x minus 2 sin x dx minus 2x minus x square cos x. ओके, अब देखो 2x माइनस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होगा? 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन वी नो दैट 2 माइनस एक्स, सॉरी 2 माइनस 2x। तो यहाँ पे देखो 2x माइनस 2 प्रेजेंट है और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा? cos x होगा, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट है ना। तो थोड़ा सा इसको अपन रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा? ये 2x माइनस 2 साइन एक्स डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x cos x dx, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज हुआ है कहीं ना कहीं, करेक्ट है। यानी कि द थिंग इज व्हाट, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x मल्टीप्लाई विथ साइन एक्स, है ना, u फंक्शन एंड v फंक्शन, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u v एज इट इज एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ v u एज इट इज। तो इस तरह से हुआ, यानी कि वी हैव d of x square minus 2x sin x, okay, and dy. Now if we will integrate both sides, that means y is equal to x square minus 2x sin x and plus of c. Okay, one more information is given कि y0 is equal to what? 2. Okay, y0 is equal to 2, यानी कि 2 equal to, here we will get 0, यानी कि c value we have 2. So now we have to find y of 2 we have to find, यानी कि when x is equal to 2. चलिए, so y when x is equal to what? 2. If x equal to 2 we will substitute in this one, we'll get what? 0, because 4 minus 4. तो y is equal to c, and c we know that 2 we have, यानी कि y equal to 2 is our correct answer, यानी कि option number 4 is our correct answer for this question. Question number 2 we have from JEE Mains 2024. Let y is equal to y by x with the solution of differential equation, that is 1 minus x square dy. Okay, differential equation we have 1 minus x square dy is equal to xy plus x cube plus 2 root 3 and root over 1 minus x square dx. Okay, फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन दैट x लाइज बिटवीन व्हाट? -1 to 1, y0 हमारे पास 0 है और गिवन है कि y ऑफ हाफ इज इक्वल टू m बाई n और m and n आर व्हाट? को प्राइम नंबर्स, सो वी हैव टू फाइंड m प्लस n वैल्यू। ओके, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होता है कि हम dy बाई dx फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो इफ विल फाइंड dy बाई dx, सो dy बाई dx xy अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ओके, एक्स क्यूब प्लस 2 रूट 3 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, सॉरी, ओके ना। तो यहाँ पे एक जो फॉर्मेट बन रहा है वो दिख रहा है मेरे को कि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेर पी एंड क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो आपका टारगेट हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड करो। तो इफ विल अरेंज दिस वन, सो डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 minus x square multiply with root 3. So p value we have minus x upon 1 minus x square. So integrating factor, that is e power integration of x upon 1 minus x square dx. Okay, if we will substitute x minus 1 square is equal to t, so minus of 2x dx is equal to dt. Okay, so minus of x dx will get half times dt, which means e power 1 by 2 integration of 1 by t dt, यानी कि e power 1 by 2 ln t, which means root over t, और root over t means root over 1 minus x square. Okay, so solution is what? Y multiply with root over 1 minus x square is equal to integration of x cube plus 2, okay, root over 1 minus x square root 3 upon 1 minus x square, and this thing we will multiply, so we'll get 1 minus x square dx and plus integrating constant c. Okay, now देखो यहाँ पे जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये भी रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे सारे के सारे। ठीक है, सो नाउ वी हैव y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, आपका आ जाएगा किसके, देखो रूट 3 आउटसाइड एंड एक्स क्यू प्लस 2 dx, इसका इंटीग्रेशन तो इजीली परफॉर्म कर लेंगे, x पावर 4 प्लस 4 एंड 2x. ओके, आउटसाइड वी हैव रूट 3 प्लस c इज इक्वल टू y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है, y 0 हमारे पास है 0 के इक्वल. ओके, y 0 we have 0, so 0 is equal to 0 plus c, which means c is equal to 0. So we are getting y root over 1 minus x square is equal to root 3 x power 4 by 4 plus 2x. अब जो हमें फाइंड करना है वो y ऑफ हाफ फाइंड करना है. ओके, चलिए, तो y रूट ओवर 1 माइनस 1 by 4 इज इक्वल टू रूट 3, ओके, 1 by 2 पावर 4 upon 4 plus 2 multiply with 1 by 2. Okay, so we are getting y root 3 by 2 is equal to root 3, and यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 upon 2 power 6 plus 1. 2 power 6 का मतलब कितना हो गया, 2 power 5 32, यानी कि 64. Okay, so here we are getting 65 by 64 is equal to y by 2, यानी कि y is equal to 65 by 32. Okay, this thing is our m by n, so they are asking m plus n. m plus n हमारे पास क्या आ जाएगा, 65 plus 32. Okay, which means 7 and 9. Okay, so 97 is our correct answer for this question. Okay, so answer is what, 97. Next question we have from 2024 कि y equal to yx with the solution of the equation secant square x dx plus e power 2y tan square x plus tan x dy equal to 0, where x we have 0 to pi by 2, y of pi by 4 we have 0, or we have to, okay, y of pi by 6 given alpha, then we have to find e power 8 alpha is equal to what. Okay, so हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, secant square x dx, okay, equal to minus of e power 2y tan square x plus tan x dy. ओके, एक चीज मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है कि यदि मैं tan x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो वो secant स्क्वायर आएगा, करेक्ट है. तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि दिस वन इज व्हाट, secant स्क्वायर dx by dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e पावर 2y tan स्क्वायर x माइनस tan x.
ओके, अब अपने कहा कि tan x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू y. Okay, differentiate with respect to y, so we'll get secant square x dx by dy is equal to dt by dy. Okay, so secant square dx by dy, now we will replace with what? dt by dy is equal to minus e power 2y t square minus t. Okay, dt by dy is equal to minus of e power 2y t square and minus of t we are getting. Now the next step is what? ओके, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं इसको. इफ यू विल डिवाइड विथ टी स्क्वायर, सो 1/t² dt by dy, बिकॉज यहाँ पे मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा हूँ अगेन, तो मेरे को डिवाइड करना पड़ेगा. तो 1/t² dt by dy इज इक्वल टू e पावर माइनस e पावर 2y एंड माइनस 1/t. ओके, अब देखो यहाँ पे यदि मैं 1/t को कुछ सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या ये फॉर्मेट होगा या नहीं? 1/t का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, दैट इज 1/t² ऑफ माइनस. ओके, सो अगेन आप सब्स्टिट्यूशन यूज करोगे, दैट इज 1/t इज इक्वल टू u, यानी कि माइनस ऑफ 1/t² dt by dy इज इक्वल टू du by dy. ओके, यानी कि माइनस ऑफ du by dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ e पावर 2y एंड माइनस ऑफ u. ओके, तो आ गया हमारे पास du by dy इज इक्वल टू u प्लस e पावर 2y, यानी कि du by dy माइनस u इज इक्वल टू e पावर 2y. तो ये फॉर्मेट आ गया dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. ओके, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ यू विल फाइंड, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज व्हाट? इंटीग्रेशन e पावर माइनस ऑफ 1 एंड dy, यानी कि वी आर गेटिंग e पावर माइनस ऑफ y. So u multiply with e power minus of y is equal to integration of e power 2y dot e power minus y dy and plus of integrating constant c. Okay, so we have u multiply with e power minus y is equal to integration of e power y dy plus c, or integration of e power y is what? E power y only. Okay, sorry, u multiply with e power minus of y. अब u वैल्यू इज व्हाट? u इज 1/t और t इज व्हाट? tan x, यानी कि 1/tan x. ओके, सो 1/tan x e पावर माइनस y इज इक्वल टू e पावर y प्लस c. ये आपके फाइनल जो इसका सॉल्यूशन आ रहा है वो है. अब उसने कहा कि y ऑफ π/4 वी हैव 0. ओके, तो y ऑफ π/4 वी हैव 0. तो 1/tan π/4 1 e पावर 0, ओके, इक्वल टू e पावर 0 प्लस c, यानी कि c इक्वल टू 0 वी है. सो नाउ वी आर गेटिंग 1/tan x e पावर माइनस y इज इक्वल टू e पावर y. ओके, यानी कि 1/tan x इज इक्वल टू e पावर 2y. ओके, if you will take log both side, that means ln of 1/tan x is equal to 2y. Now we have to find what? Y of π/6. Okay, तो ln 1/tan π/6 is equal to 2y, यानी कि y is equal to 1/2 ln, देखो tan π/6 tan π/6 means what? 1/√3. So we'll get inside √3. ओके, यानी कि y इज इक्वल टू ln √3 पावर 1/2, विच मीन्स ln 3 पावर 1/4 भी है. ओके, नाउ दे आर आस्किंग व्हाट? दे आर आस्किंग कि अल्फा वैल्यू वी गॉट. ओके, e पावर 8 अल्फा दे आर आस्किंग. ओके,
e power 8 multiply with ln of 3 power 1 by 2, which means e ln 3 square we have. ओके यानी कि जो आंसर हो जाएगा वो 3 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9. So 9 is our correct answer for this question. Okay, next question we have from 2023 कि y is equal to yx with the solution of this equation x square minus 3y square dx plus 3xy dy equal to 0. Okay, so differential equation हमारे पास है x square minus 3y square dx is equal to minus of 3xy dy. Okay, तो यदि आपसे मैं dy by dx पूछता हूं तो वो क्या आ जाएगा? dy by dx we have x square minus 3y square upon minus of 3x y, यानी कि dy by dx is equal to 1 by minus 3 x by y minus minus plus 3 cancel out and 1 y cancel out, so y by x. यानी कि यहाँ पे देखो फॉर्मेट बन गया कि y by x को आप क्या सब्स्टिट्यूट कर दो? v. So if you will differentiate this one with respect to x, we'll get dy by dx is equal to v plus x dv by dx. Okay, चलिए तो dy by dx now we will replace with v plus x dv by dx is equal to minus of 1 by 3 v, because y by x हमारा क्या है? v है, तो x by y क्या हो जाएगा? 1 by v and plus of v, तो v cancel out, यानी कि x dv by dx is equal to minus of 1 by 3 v. ओके, यानी कि 3v dv is equal to minus of 1 by x dx. If you will integrate both side, we'll get what? 3v square by 2 is equal to minus of ln x plus c. Okay, now v value we know that y square by x square we have, यानी कि 3 by 2 y square by x square is equal to minus of ln x plus c we have. One information is given कि y of 1 is equal to 1. Okay, तो 3 by 2 is equal to, यहाँ पे ln 1 तो 0 हो जाएगा, c की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? 3 by 2. चलिए, now we will simplify this one further. So we have 3 by 2 y square x square is equal to minus of ln x plus 3 by 2. Divide with 3 by 2. So y square by x square is equal to minus of 2 by 3 ln x plus 1. Now multiply with x square. So y square is equal to minus of 2 by 3 x square ln x plus x square. Okay, तो उन्होंने पूछा है कि y square of e is what? तो y square we have this function, यानी कि x equal to e we will substitute in this one. So y square हमारे पास क्या जाएगा? minus of 2 by 3 e square ln e1 plus e square, which means e square by 3. They are asking 6 times y square, which means 2 e square. So 2 e square is our correct answer, which means option number 3 हमारा वो correct answer हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है JEE Mains 2023 का कि y is equal to y1x and y equal to y2x be the solution of the differential equation dy by dx is equal to y plus 7. तो बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, यानी कि dy by y plus 7 is equal to dx. If we will integrate both side, we'll get ln of y plus 7 is equal to x. Okay, एंड प्लस ऑफ इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c. अब उन्होंने कहा कि y1 0 इज इक्वल टू 0. ओके, यानी कि एक बार के लिए आप समझो कि आपके पास कर्व 1 फाइंड कर रहे हो और कर्व 2 फाइंड कर रहे हो, यानी कि एक बार y1 फंक्शन फाइंड कर रहे हो और y2. अब y1 फंक्शन के उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि y1 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड हियर वी हैव y2 ऑफ 0 इज इक्वल टू 1. तो 2 डिफरेंट c वैल्यूज वी विल गेट. ओके, चलिए, तो इसमें अब जब y की वैल्यू आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो ln ऑफ 7 इज इक्वल टू c आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा ln ऑफ 8 इज इक्वल टू c. तो हमारे पास जो फर्स्ट कर्व है दैट विल गेट ln ऑफ y plus 7 is equal to x plus ln 7, and curve second will get ln of y plus 7 is equal to x plus ln of 8. They are asking is
then curve y equal to y1x and y equal to y2x intersect at what point. ओके तो यहाँ पे देखूंगा कि ये दोनों कर्व कहीं पे इंटरसेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? यदि आप x की वैल्यू फाइंड करने जाते हो तो देखो यहाँ पे टू वेरिएबल का क्वेश्चन बन गया सिंपली। तो ln ऑफ y प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस ln 7 एंड ln ऑफ y प्लस 8 इज इक्वल टू x प्लस ln 8। सॉरी, अब देखो यहाँ पे ln y प्लस 7 है, ln ऑफ y प्लस 7 इसको मैं एक बार z बोल देता हूँ। तो z इज इक्वल टू x प्लस ln 7 एंड z इज इक्वल टू x प्लस ln 8। तो ये तो दिख रही है पैरेलल लाइंस की तरह, और पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशन आपके पास आएगा नहीं, यानी कि नो सॉल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नो पॉइंट वी हैव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम 2023। गिवन है कि dy by dx plus 5 upon x power 5 plus 1 of y is equal to x power 5 plus 1 whole square by x power 7। तो यहाँ तो सिंपल सा अपने को दिख रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 एंड dx। ओके, चलिए तो इसमें से x पावर 5 को यदि अपन कॉमन लेते हैं तो e पावर अपर वन विल गेट x पावर माइनस ऑफ 6 and here we'll get 1 plus x power minus of 5 dx. Now x plus 1 plus x power minus 5 is equal to t. So minus of 5 x power minus 6 dx is equal to dt भी है। ओके, तो आपको चाहिए क्या, 5 x पावर माइनस 6 dx चाहिए, यानी कि e पावर माइनस ऑफ 1 बाई टी dt वी आर गेटिंग, यानी कि e पावर माइनस ऑफ ln t विच मीन्स 1 बाई टी आपका आ रहा है, और 1 बाई टी मीन्स वॉट, x पावर 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1। ओके, तो जनरल इसका जो सॉल्यूशन हो जाएगा y मल्टीप्लाई विथ x पावर 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू इंटीग्रेशन। ओके, यहाँ पे हमारे पास है x पावर 5 प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड विथ x पावर 7 एंड मल्टीप्लाई विथ वॉट, x पावर 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 dx एंड प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ओके, इसको यदि हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y डॉट x पावर 5 अपॉन x पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू, ये 1 पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ जाएगा x पावर 10 प्लस x पावर 5 अपॉन x पावर 7 dx प्लस c। स्प्लिट करते हैं तो x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑफ इंटीग्रेशन भी है। ओके, चलिए तो मिल गया y डॉट एक्स पावर 5 अपॉन एक्स पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू एक्स पावर 4 बाई 4 माइनस 1 बाई एक्स एंड प्लस सी। चलिए अब देखते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है। y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 वी हैव। ओके, y ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई विथ 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 प्लस सी। तो यहाँ पे आ रहा है 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 माइनस 1 एंड प्लस ऑफ सी। ओके, तो c की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगी 7 बाई 4। ओके, c वैल्यू विल गेट 7 बाई 4। चलिए अब c वैल्यू हमारे पास 7 बाई 4 आ गई, और वो पूछ रहे हैं हमसे क्या, y ऑफ 2। ओके, चलिए तो y ऑफ 2 मीन्स y मल्टीप्लाई विथ 2 पावर 5 अपॉन 2 पावर 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 पावर 4 बाई 4, ओके, माइनस 1 बाई 2 एंड प्लस 7 बाई 4 वी हैव। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा y मल्टीप्लाई विथ 32 अपॉन 33 इज इक्वल टू 2 पावर 4। 2 पावर 4 मीन्स 16, 16 बाई 4 यानी कि 4 माइनस 1 बाई 2 प्लस 7 बाई 4 आ रहा है हमारे पास। ओके, चलिए तो एलसीएम इज 4, यानी कि 16 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई विथ 32 बाई 33। ओके, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 693 अपॉन 128। 32 मल्टीप्लाई विथ 4 128 आ जाएगा, और यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो तो आपके पास 21 आ रहा है, 21 मल्टीप्लाई विथ 33, तो 693 अपॉन 128 इज अवर करेक्ट आंसर।
ओके 693 अपॉन 128 ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन हमारे सामने कि y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन x log x dy by dx plus y equal to x square of log x is greater than 1 if y of 2 is equal to 2 and y of e is equal to what? ओके तो हमारे पास है x ln x dy by dx plus y is equal to x square of ln x। तो हम डिवाइड करते थे किससे? x ln x से। सो dy by dx plus y upon x ln x is equal to x we have. Okay, so integrating factor if you will find, that is e power integration of 1 by x ln x dx। ln x को यदि मैं t सब्स्टिट्यूट करता हूं इसके अंदर तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 by x dx is equal to dt, यानी कि e power 1 by t dt we have। okay, integration of 1 by t ln t we know that, यानी कि e power ln of t which means t आपका आंसर आ जाएगा। t means what? ln of x। चलिए अब इसका यदि मैं सॉल्यूशन फाइंड करूंगा तो क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू y ln x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x ln x dx प्लस c। अब x ln x का इंटीग्रेशन हमें करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ln x x स्क्वायर बाई 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ ln x इज 1 बाई x एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज व्हाट? x स्क्वायर बाई 2 dx, okay, and plus of this integrating constant c. So we have ln of, so we have x square by 2 ln x minus integration of x by 2 dx and plus of c। अब integration of x is what? x square by 2, तो आ जाएगा x square by 2 ln x minus x square by 4 plus c equal to we have y ln x। ओके, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। ओके, y ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि 2 ln 2 इज इक्वल टू 4 by 2 ln 2 minus 4 by 4 plus c। ओके, इफ फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन, देखो 2 ln 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो c की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी। अब उसने पूछा है y ऑफ e आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो y ln e इज 1 इक्वल टू e स्क्वायर बाई 2 ln e 1 अगेन माइनस e स्क्वायर बाई 4 एंड प्लस ऑफ 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? e स्क्वायर बाई 4 प्लस 1, यानी कि e स्क्वायर प्लस 4 बाई 4 इज इक्वल टू y। ओके, e स्क्वायर प्लस 4 बाई 4, e स्क्वायर प्लस 4 बाई 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। जेई मेंस 2022 का क्वेश्चन है हमारे पास, dy by dx minus y is equal to 2 minus e power minus of x such that limit x tending to infinity y of x is what? A finite quantity. If a and b are the respectively the x and y intercept of the tangent to the curve at x equal to 0, then the value of a minus 4b is what? ओके, तो यहाँ पे देखो मिक्स क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे टेंजेंट का भी क्वेश्चन यूज होगा, टेंजेंट का भी यूज हो जाएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज है, ठीक है, और लिमिट का भी यूज हो गया, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस ई पावर ऑफ माइनस एक्स। तो सिंपल सा यहाँ पे दिख गया कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट हो गया हमारे पास। ओके, चलिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इफ यू विल फाइंड, दैट इज ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1
dx which means e power minus x, यानी कि y dot e power minus x is equal to integration of 2 minus e power minus x multiply with e power minus x dx and plus of c. So we are getting 2 e power minus x minus e power minus of 2x, okay, dx plus c. तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, y डॉट ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 e power minus x and plus e power minus of 2x by 2, okay, and plus of c. नाउ गिवन है कि जो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है वो क्या हो रही है, फाइनाइट हो रही है. तो यहां से यदि मैं y फाइंड करता हूं तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस ई पावर माइनस ऑफ x बाई 2 प्लस c अपॉन ई पावर माइनस ऑफ x. इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं. तो माइनस ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 ई पावर x प्लस c ई पावर x है और ये y है. अब इसमें लिमिट लगानी है मेरे को x टेंडिंग टू infinity of y which means limit x tending to infinity of minus 2 plus 1 upon 2 e power x plus c e power x. और वो लिमिट क्या आ रही है मेरे पास, फाइनाइट आ रही है. देखो जब मैं यहाँ पे x टेंडिंग टू इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट करूँगा फर्स्ट टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेकंड में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज 1 बाई इन्फिनिटी आ रहा है वो जीरो के इक्वल हो जाएगा. बट थर्ड टर्म में मेरे पास प्रॉब्लम आ रही है विच इज इन्फिनिटी, है ना. ई पावर इन्फिनिटी इज वॉट, इन्फिनिटी, यानी कि इसका मतलब हो गया कि c मस्ट बी जीरो. सी को आपको क्या होना पड़ेगा, जीरो ही होना पड़ेगा सी को, ठीक है. चलिए तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई जीरो, यानी कि वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन 2 ई पावर एक्स है, ठीक है. अब जो हमें फाइंड करना है उसके बारे में देखते हैं. हमें जो फाइंड करना है उसने कहा है कि फाइंड कीजिए टेंजेंट टू दिस कर्व एट एक्स कॉमा सॉरी एट एक्स इक्वल टू जीरो, ओके. टेंजेंट फाइंड करनी है एट एक्स इक्वल टू जीरो. तो टेंजेंट के लिए हमें स्लोप चाहिए, ओके. उसके लिए मैं पहले पॉइंट ही फाइंड कर लेता हूँ कि मैं इसमें एक्स इक्वल टू जीरो सब्स्टिट्यूट करता हूँ. तो वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 प्लस 1 बाई 2 विच मीन्स माइनस ऑफ 3 बाई 2 आ गया. यानी कि 0 कॉमा माइनस ऑफ 3 बाई 2 हमारा पॉइंट है जिस पर अपने को टेंजेंट फाइंड करनी है. तो वाई डैश क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 बाई 2 ई पावर माइनस ऑफ एक्स. सो वाई डैश एट 0 कॉमा माइनस ऑफ 3 बाई 2 इज माइनस ऑफ 1 बाई 2. तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, तो y प्लस 3 बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई 2 एंड x. इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है. तो x इंटरसेप्ट मीन्स y इज इक्वल टू 0, यानी कि देखो आ गया माइनस ऑफ 3 इज इक्वल टू x, ओके. एंड y इंटरसेप्ट यदि मैं फाइंड करूंगा तो उसमें x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाई 2. उन्होंने कहा कि x इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है, a, एंड y इंटरसेप्ट हमारा है b, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एंड b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 बाई 2, ओके. जो हमें फाइंड करना है वो है a माइनस 4b, ओके. सो a माइनस 4b इज अवर टारगेट. सो माइनस ऑफ 3 प्लस 12 बाई 2 यानी कि माइनस ऑफ 3 प्लस 6 विच मीन्स 3. सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या जाएगा, 3. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम जेईई मेंस 2022 कि dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, वेयर x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 1 passes through origin then this integration value is what, ओके. तो हमारे पास है dy बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 2x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ पे है वो रूट ओवर 1 माइनस आ रहा है तो मैं इसको भी 1 माइनस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, है ना. यार दिस एक्स स्क्वायर माइनस 1 वी विल कन्वर्ट इन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x power 4 plus 2x upon root over 1 minus x square. So integrating factor now we have e power minus x upon 1 minus x square of dx. So 1 minus x square is equal to t. So minus of 2x dx is equal to dt. Okay. So e power 1 by 2 and 1 by t dt we have. So we'll get e power 1 by 2
ln t, विच मीन्स t पावर 1/2 यानी कि रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलिए तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x of integration, okay, divide with we have root over 1 minus x square and multiply with we have root over 1 minus x square dx and plus of integrating constant c, यानी कि y root over 1 minus x square is equal to we have x square plus 2x of dx plus c, which means x power 5 by 5 plus x square plus c is equal to y root over 1 minus x square। ओके, अब इन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी होगी आपको सी को फाइंड करने के लिए, वो है कि दिस थिंग पासेस थ्रू 0,0। अच्छा, 0,0 से पास करेगी तो सी की वैल्यू भी आपके पास 0 आ जाएगी यहाँ से। तो वी हैव y इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है और इंटीग्रेशन हमारे पास है माइनस ऑफ रूट 3/2 टू रूट ऑफ 3/2 x पावर 5 प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट करता हूँ, तो माइनस ऑफ रूट 3/2 टू रूट 3/2 एक्स पावर 5 अपॉन 5 टाइम्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 3/2 टू 3/2 5x स्क्वायर अपॉन 5 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे है वो ऑड फंक्शन है, और जब भी हमारे पास लिमिट माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स, और जहाँ पे एफ एक्स क्या हो ऑड फंक्शन, तो आंसर होता है 0। और इवन होता है तो क्या होता है 2 टाइम्स 0 टू ए ऑफ एफ एक्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा इवन फंक्शन है। तो इसका जो अब आई है वो हमारे पास क्या हो गया 2 टाइम्स 0 टू रूट 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, तो x को आप साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। इफ x इज इक्वल टू साइन थीटा दैट मीन्स dx इज व्हाट cos थीटा d थीटा। ओके, हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स साइन 0 0 होता है, और रूट 3 बाई इफ यू विल सब्स्टिट्यूट दैट मीन्स पाई बाई 6 आएगा थीटा। ओके, एंड हियर विल गेट साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई विथ cos थीटा, एंड देखो रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट मोड ऑफ cos थीटा, एंड 0 से पाई बाई 6 में cos थीटा पॉजिटिव होगा दैट मीन्स विल गेट ऑन द cos थीटा d थीटा। तो cos थीटा कैंसिल आउट, अब आ रहा है 0 टू पाई बाई 6 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट व्हाट 1 माइनस cos 2 थीटा। ओके, एंड d थीटा वी हैव इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 6। अब 1 का इंटीग्रेशन थीटा माइनस cos थीटा इंटीग्रेशन इज व्हाट साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइड विथ 2 फ्रॉम 0 टू पाई बाई 6, यानी कि पाई बाई 6 माइनस 1/2 साइन ऑफ पाई बाई 3, तो पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 3 वी नो दैट रूट 3/2 यानी कि रूट 3/4, यानी कि पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4 इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, पाई बाई 6 माइनस रूट 3/4 is our correct answer. So next question we have from 2022. Consider y equal to yx in the first quadrant, okay, as shown in the figure. Let the area A1 is the twice of the area A2. So we have area A1 is equal to 2 times of area 2. Okay, then the normal to the curve perpendicular to the line 2x minus 2y equal to 15 does not passes through which of the following point. Okay, तो हमारे पास है, if you will see this diagram, area of this shaded region is what? Area of this shaded region, देखो 2 rectangles हमारे पास है। The first rectangle we have this one, okay, second rectangle we have here. So we can write ki total area
is equal to area of this rectangle is what? XY minus area of this rectangle which is 8, यानी कि A1 plus A2 is equal to XY minus 8. अब A1 A2 is what? A1 by 2, right? यानी कि A1 plus A1 by 2 is equal to XY minus 8, यानी कि 2. So here we'll get 3 times of A1 by 2 is equal to X, and Y is what? This curve only, right? तो आप लिख रहे हैं हम इसको fx minus 8. ओके, सपोज कर लिया कि ये कर्व हमारा क्या है, y इक्वल टू fx है. ओके, चलिए. सो a1 इज इक्वल टू 2/3x ऑफ fx माइनस 16/3 वी हैव. अच्छा, अब एरिया a1 हमारे पास किस तरह से आप निकाल सकते हो, और कोई मेथड से. एरिया a1 वी हैव दिस वन, राइट. Can we say कि this thing is what? Integration 4 to x of fx dx, okay, which is equal to 2/3x of fx minus 16/3. अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. लास्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम 2022. y equal to yx, we have a curve in the first quadrant. Okay, given that कि a1 is the twice the area of a2. Okay, so area a1 is equal to 2 times of area 2. Then normal to the curve perpendicular to the line 2x minus 12y equal to 15 does not passes through which of the following point. Okay, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन हमारे पास है. ठीक है, देखो इसका एरिया यदि मेरे को फाइंड करना है इस रीजन का, तो टोटल एरिया देखो यहाँ पे दो रेक्टेंगल दिख रहे होंगे मेरे को. यदि मैं यहाँ पे नेमिंग देता हूँ तो ये पॉइंट ओ ए बी एंड सी, एंड दिस वन वी कैन से डी ई एंड एफ. ओके, तो यदि मैं टोटल एरिया फाइंड करता हूँ, दैट इज a1 प्लस a2, वो क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल माइनस दिस रेक्टेंगल, है ना, यानी कि एक्स वाई माइनस 4 मल्टीप्लाई विथ 2 8. ओके, चलिए, तो a1 प्लस a1 by 2 is equal to xy minus 8. So here we will get 3a1 by 2 is equal to xy minus 8, यानी कि a1 is equal to 2/3 outside xy minus 8 भी है. ओके, अब देखो एरिया ऑफ a1, यदि ये कर्व अपन कहते हैं y इक्वल टू fx है, तो एरिया ऑफ a1 वी कैन राइट व्हाट? इंटीग्रेशन 4 to x f of x dx also we can write. ओके, चलिए, सो वी हैव इंटीग्रेशन 4 to x fx dx इज इक्वल टू 2/3. ओके, अब y भी तो fx के इक्वल ही है, तो यहाँ पे x fx माइनस 8 भी है. अब देखो यहाँ पे लेबनीज थ्योरम आपको यूज करनी पड़ेगी इसके डिफरेंशिएशन की. बट लेबनीज थ्योरम क्या कहती है आपको? कि इंटीग्रेशन के जो इनसाइड का वेरिएबल है वो आपका डिफरेंट होना चाहिए, है ना. तो हम जानते हैं कि इसको यदि मैं एफ एक्स डी एक्स को एफ ऑफ टी डी टी लिख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट. सो वी हैव इंटीग्रेशन 4 to x एफ ऑफ टी डी टी, बिकॉज डिफरेंट वेरिएबल मेरे को करना था इसलिए 2/3 x एफ एक्स माइनस 8 भी है. ओके, अब देखो यहाँ पे लेबनीज अप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? एफ एक्स इक्वल टू 2/3, एंड इनका सेपरेट डिफरेंशिएशन आप परफॉर्म करोगे तो एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स, यानी कि 3f(x) माइनस एफ एक्स 2 टाइम्स. ओके, 3f(x) माइनस 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x एफ डैश एक्स, यानी कि वी आर गेटिंग व्हाट? एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x, यानी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/2x. इंटीग्रेट बोथ साइड, विच मीन्स ln of fx is equal to 1/2. okay, and ln of x plus c. Instead of writing c, we will write ln c only. Okay, now we will take LCM, so we will get fx whole square is equal to xc.
यानी कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी भी है। ओके, देखो ये जो कर्व है, ग्राफ से हम कह सकते हैं कि दिस कर्व विल पास थ्रू पॉइंट 4,2। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे 4,2, दैट मीन सी इज इक्वल टू 1। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स कर्व भी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। उस पर आपको क्या लिखना, नॉर्मल की इक्वेशन, एंड दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू गिवन वी हैव 2x माइनस 12y इक्वल टू 15। तो यहाँ से स्लोप आप टेंजेंट का निकालोगे तो क्या रहा है 6 1 बाई, सो स्लोप ऑफ नॉर्मल विल गेट माइनस ऑफ 6। ओके, और अब आपको यहाँ पे एक पैराबोला की प्रॉपर्टी यूज होगी कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इफ पैराबोला वी हैव, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज व्हाट, y is equal to mx minus 2am minus am cube. So in this case our a is equal to 1 by 4 and m is equal to minus of 6, यानी कि y is equal to minus of 6x minus 2 multiply with 1 by 4 multiply with minus 6 and 1 by 4 multiply with minus of 6 cube. So y is equal to minus of 6x plus 2 टू ज़ा 4 यानी कि 3 आ जाएगा, एंड माइनस माइनस प्लस अगेन 216 डिवाइड विथ 4 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 3 प्लस 54 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 6x प्लस 57। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से आप चेक करोगे कि विच पॉइंट विल नॉट सेटिस्फाई दिस नॉर्मल। तो यदि आप ऑप्शन नंबर 3 चेक करोगे 10 माइनस ऑफ 4, ओके, तो क्या आ जाएगा, देखो -4 इज इक्वल टू -60 प्लस 57 यानी कि -4 इज इक्वल टू -3 विच इज नॉट पॉसिबल, यानी कि ऑप्शन 4 है वो, सॉरी ऑप्शन 3 है वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है नॉर्मल को। ओके